Good morning, all. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning. Good morning, all of you. Good morning, ma'am. Good morning. So today we are going to learn. I told for the test, but today I will not be taking the test. I will take in the next class. Beta, okay? Understood what I said? I said for the chemical Yes, effect ma'am. current two chapters are there. Chapter is there, but I will not take test. Monday I am getting two periods. Okay, one period, first two periods I am getting Monday. Okay, so I will be taking on that particular day because two periods are there, na. So I will take on that particular day. Okay, clear? Ma'am, second period of Monday is of Ma'am, Hindi. ma'am, second period of Monday is Hindi. Hindi or it is science physics? Ma'am, it is written chemistry, Hindi, maths, English. Let me check because I think it was physics of Prince sir. Okay, that's why I will be taking Ma'am, physics is on Friday. Friday, not Monday. Also, you are having no? Yeah, No, No, ma'am. ma'am. Hindi here. Okay, okay. Let me check again for them. When once more, let me check. Then I will tell you. Okay. So one second. Let me see that. You are class 7th, isn't that? Class 7th Monday it is there physics. आपको जो फाइनल टाइम टेबल मिला है उसमें क्या है? What is there in the final time table? Ma'am, chemistry, then Hindi. Okay, then Then math. let me confirm. Then I will tell. Okay. So today actually I will be not taking this because I have been told that Monday physics is there. So according to that I planned. Okay, let me check if there it is. Yeah, got. But I am also having. Got it, beta Adi. Okay. And what about your art integration work, beta? Why you are not submitting? Ma'am, I have said na I will send after 2-3 days. Ma'am, Ma'am, I have today I submitted. reach home and I will send you today. Ma'am, I have submitted. Ma'am, I have submitted. Yes, you have submitted. What about others? You have to submit, isn't that? Ma'am, I have called you and say na that I am out of home. Okay, beta, that I understand. That's ये आप permission ले लिए भाई पे. Today, ma'am, today I will send you. Today I am in home. Okay. What about others? What about others? What should I wait for? How many days? How many days should I wait for the work to be done? For the work to be done, how many days I have to wait? Now I am sending you the Google Form link. In that particular link, you will attach your work. Okay. In that particular link, you will attach your work, and then we will see from there. Okay. पता है ना Google Form में कैसे attach करना है? Yes, ma'am. Okay. It is missing from here. Who is your class teacher group? 7th A and B. 7th B. Divakar sir is a 7th A. Who is the class teacher? Sunita ma'am, I think. Ma'am, Sunita, ma'am. Sunita madam. Okay. I will send her the link. She will transfer the link to your group. Okay. Otherwise, you can send me personally in the WhatsApp or through my email ID. If you are sending me or Neetu madam, anybody you are sending, you can send to anybody. Okay. Through WhatsApp or email ID. But आप जब भी आप किसी भी टीचर को आर्ट इंटीग्रेशन डालोगे तो एक मैसेज आप दे दोगे, मैम वी हैव सबमिटेड, माय नेम इज दिस एंड दिस एंड माय आईडी इज दिस एंड दिस. ओके, इज इट क्लियर? ओके, समझ में आया? बिकॉज दिस आर द थिंग्स विच आर कैरिंग मार्क्स, सो यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट इट. सो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास. एंड केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट तो हो गया था. उसका सब्जेक्टिव का जो टेस्ट मैं लूंगी बोली थी, दैट आई विल टेक depending on the case. If it is not there on Monday, then I will take the test next in the next class. Okay, तो next class में आप subjective के लिए मैम, okay? मैम अगर मुझसे नहीं बनता है तो नहीं बनता है मीन्स क्या चीज नहीं बनता है? इंटीग्रेशन नहीं मिल रहा तो क्या क्यों नहीं बनेगा भाई? If you will search, the whole day you are using the mobile. Don't tell me that you don't know how to search about the Wikipedia and all that. Don't tell me you don't know how to Google search.
गूगल सर्च मैंने जानबूझ के ऐसा गूगल सर्च वाला दिया है ताकि आपको ज्यादा इधर उधर करना नहीं पड़े, आपको गूगल में थोड़ा सा सर्च बस करना पड़े, ज्यादा कुछ नहीं करना है आपको. And I am not asking you to make 10-15 slides. I am asking you minimum 8 slides should be there. Okay? So you have to submit it compulsorily. There is no other chance. Otherwise, don't ask us to give the marks of art integration work. Okay? So I will not waste too much time. Let's start our work. Okay? Today we are going to devise that it is acid, bases and salt for class 7. The science that is. This is your total 3 chapters. How many chapters are there in मैम three? Yes. मैम किसकी पीपीटी बनाना है? मैं अभी ज्वाइन हुआ हूँ. पीपीटी मतलब बेटा आर्ट इंटीग्रेशन की पीपीटी जो है ना वो तो बनानी पड़ेगी. यस मैम. ओके तो मैम यस मैम उसका मैम टॉपिक क्या है? सब्जेक्ट बनाना है. इन छत्तीसगढ़ एंड गुजरात. और उस बीवरेजेस में जब आप डिस्कस करो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दोगे कि कौन से पार्ट में कहाँ यूज होता है, गुजरात के कौन से पार्ट में या छत्तीसगढ़ के कौन से पार्ट में कौन सा बीवरेज यूज होता है, और उसके बाद उस बीवरेज में क्या यूज होता है. अगर जैसे सपोज टी हो गया तो टी में टी लीव्स है, उसका कंडीशन कैसा आता है, एसिडिक होता है, बेसिक होता है, पीएच क्या है. ओके कॉफी होता है तो कॉफी है. अगर कॉफी कोई लोग कहीं पर्टिकुलर एरिया के लोग कॉफी ज्यादा पसंद करते हैं, कहीं किसी पर्टिकुलर एरिया के लोग. यस मैम जो क्वेश्चन है मैम जो मतलब आर्ट इंटीग्रेशन का वो एक बार मैसेज में सेंड कर दो ना आप. क्वेश्चन नहीं है बेटा, टॉपिक है. कंपैरेटिव स्टडी ऑफ बीवरेजेस यूज्ड इन छत्तीसगढ़ एंड गुजरात. कंपैरेटिव स्टडी ऑफ बीवरेजेस यूज्ड इन. मैम इसी को लिख के भेज दो ना. मैम यस मैम पानी भी बीवरेजेस में आते हैं तो गुजरात और छत्तीसगढ़ दोनों में पानी लिखना ना. बीवरेजेस मतलब कुछ आप स्पेशल करा के बना के पीते, जैसे हो गया गन्ना रस हो गया, आपका जूस हो गया, वो भी एक तरीके का ड्रिंकिंग के लिए यूज होता है ना. वो चाय कॉफी और मिल्क शेक और क्या क्या रहता है ना, ये सब, ये मिल्क शेक वगैरह ये सब क्या है आपका बीवरेजेस के अंडर में आ जाएगा. तो आप उसको शेयर कर सकते. ठीक है. तो आपने गूगल क्यों कहे थे? गूगल से सर्च करना है. हाँ आप देख लो. मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है, आप अपने आप से उसको जितना अच्छा बना सकते हो वो आपके ऊपर है. ओके मैम एक बार रिपीट करो ना क्वेश्चन को. comparative study of beverages used in Chhattisgarh and Gujarat. छत्तीसगढ़ गुजरात. ठीक है, क्लियर है बेटा? मैम उसका पीएच भी लिखना है क्या? हाँ तो अब मेरे को तो उसका कंटेंट क्या है वो थोड़ी लिखना, आप मेरे को बताना पड़ेगा आपको उसमें वो चीज किस चीज से बनता है और वो जो बीवरेज है वो कैसा है, एसिडिक है, बेसिक है, क्या है, ऐसा सब. ठीक है, पीएच क्या है. ओके क्लियर है? तो चाय कॉफी तो कॉमन बीवरेजेस है जो हर जगह यूज होता है. टी एंड कॉफी आर द टू बीवरेजेस व्हिच आर यूज्ड होल इन ओवर इंडिया. ग्रीन टी इज देयर, ऑल दिस आर देयर. तो ये तो 2-3 तो कॉमन ही हो गए जो हर जगह यूज होता है. तो इसके अलावा भी आप जोड़ सकते हो बहुत सारे. ओके क्लियर? अब वापस आ जाए अपने टॉपिक पे. चलो स्टार्ट आवर टॉपिक. ओके एसिड. फर्स्ट इज द केस ऑफ एसिड्स. तो एसिड्स होते क्या है फर्स्ट वी विल सी दैट. ओके जैसे हम खा रहे लेमन खा रहे, तो लेमन कैसा रहता है, खट्टा रहता है. विनेगर जो कि पिकल्स में डलता है, विनेगर इज यूज्ड इन पिकल्स मींस अचार. आपकी वॉइस नहीं आ रही. विनेगर मीन्स पिकल एंड दैट पिकल इज व्हाट. अगर आप उसमें विनेगर डालोगे तो वो कैसा हो जाता है, खट्टा रहता है, सोर हो जाता है. और ऑरेंज भी कैसा रहता है, सोर इन टेस्ट रहता है. क्यों? क्योंकि ये जो सारे ऑरेंज हो गया, मौसम्बी हो गया, all these things which you are consuming and you're feeling what sour in taste, they are basically containing what acid. तो ये सारे चीज जो है उनके अंदर क्या रहता है, बेसिकली क्या रहता है, एसिड ही रहता है. ओके तो ये बेकिंग सोडा में क्या रहता है? बेकिंग सोडा में नहीं रहता, बेकिंग पाउडर में रहता है. बेकिंग सोडा में नहीं रहता, बेकिंग पाउडर में रहता है. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बेकिंग सोडा एंड बेकिंग पाउडर. रिमेंबर दैट. चलो इसको भी बता देते हैं, याद रखना इसको. बेकिंग सोडा इज सोडियम कार्बोनेट. ठीक है, बेकिंग सोडा इज व्हाट, सोडियम कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, सॉरी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. बेकिंग सोडा इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट
लेकिन जो बेकिंग पाउडर होता है उसमें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ साथ टार्टरिक एसिड भी होता है। ठीक है, क्लियर हुआ? जो बेकिंग सोडा रहता है उसमें सिर्फ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोला जाता है वो रहता है, whereas in baking powder there is sodium hydrogen carbonate plus tartaric acid is there। ठीक है, तो अभी ये जब मैं कब कराऊंगी, अभी एक दो प्रॉपर्टीज आपको कराऊंगी तब मैं इसको डिस्कस करूंगी। ठीक है, अभी के लिए आपको इतना काफी समझ में आ गया कि बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में क्या डिफरेंस रहता है, कि बेकिंग सोडा में सोडियम का हाइड्रोजन कार्बोनेट है, whereas in baking powder there is sodium hydrogen carbonate and tartaric acid, both are there। okay, is it clear? सो यहाँ पे क्या हुआ, अब ये एसिड्स जो होते हैं ये जनरली हमको क्या दिखा, अब हमने ऑरेंज खाते हैं, कर्ड लेते हैं या विनेगर लेते हैं, ये सारे के सारे बेसिकली हमको कहाँ से मिलता है, ऑर्गेनिक रिसोर्सेज से ही मिल रहे हैं। तो जनरली एसिड्स जो रहते हैं वो हमको नेचुरल रिसोर्सेज से मिले तो हम उसको क्या बोलते हैं, what natural acids और या फिर organic acid। if you are getting any acid from organic resources then it is called as organic acids। ठीक है, लेकिन हर एसिड हमको फ्रूट में या विनेगर में या एनिमल्स में मिले जरूरी नहीं है। some acids we are obtaining from mineral resources also, like okay, what happened Parsh? Tell me, what do you want to say? मैं Nothing. I saw your chat, टॉपिक वाइज अगर मुझे मिलता है एक्स्ट्रा तो मैं आपको जरूर दिखाऊंगी। ओके, बट बिकॉज आई एम हैविंग नॉट मोर टाइम, सो अब ये टॉपिक आपका ये जैसे ही हो जाएगा तो इससे रिलेटेड अगर मुझे वर्चुअल लैब में कोई भी एक्टिविटी दिखेगी देन आई विल शो यू। ओके, सो डोंट वरी अबाउट दैट, अंडरस्टूड? क्लियर हुआ बेटा? वर्चुअल लैब में मुझे जो भी एक्टिविटी दिखेगी मैं आपको जरूर दिखाऊंगी ना। नेक्स्ट, अब ये क्या हुआ, एसिड क्या होता है, मैंने आपको क्या बोला, द बेसिकली व्हाट एवर नेचुरल थिंग्स लाइक लेमन, कर्ड, विनेगर एक्सेट्रा व्हाट वी आर कंज्यूमिंग, दे आर सोर इन टेस्ट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एसिड इन देम। एंड व्हाट these acids are obtained from, where these acids were obtained from curd and vinegar and all, they are obtained from natural resources, so that's why that particular acids are called as organic acids। okay, but all the acids we do not obtain from organic resources, some acid we are obtaining from mineral resources also, like your sulfuric acid। आपने सुना होगा ना तेजाब is actually what, sulfuric acid। okay, SULPHURIC, सल्फ्यूरिक एसिड, जिसका फॉर्मूला होता है H2SO4। ये जो एसिड होता है ये किंग ऑफ एसिड कहलाता है। किंग ऑफ एसिड मतलब ऐसा एसिड जो बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, बहुत ज्यादा कोरोसिव होता है। कोरोसिव का मतलब जल्दी से भी किसी के साथ रिएक्ट करके उसको पिघला देगा। दैट्स व्हाई हम तेजाब यूज नहीं करते। यस मैम, उस तेजाब में मैम माचिस की जो काड़ी डालेंगे तो माचिस जल जाता है। वो पिघल ही जाए, जलने से साथ पहले पिघल जाए। ओके, तेजाब मतलब एसिड होता है, वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है। इफ यू आर पुटिंग योर फिंगर देन योर फिंगर will start melting away, इतना ज्यादा कोरोसिव होता है। ओके, अगर कंसेंट्रेटेड यूज करो, डाइल्यूट की बात नहीं कर रही, डाइल्यूट भी रिएक्टिव रहता है लेकिन उसका पावर कम हो जाता है। ठीक है, तो अगर आपने तेजाब लिया, तेजाब का मतलब होता है कंसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, वो इतना ज्यादा कोरोसिव है, आप जिस भी सरफेस के ऊपर डालोगे वो जल जाएगा, पिघल जाएगा। या इसी कारण से जब किसी के ऊपर एसिड अटैक होता है तो आप देखोगे कि उसकी स्किन के साथ साथ उसके इनर मसल्स भी पूरे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और उनका लाइफ पूरा वो हो जाता है। एंड व्हाट यू कैन से दैट द फेस और द हैंड और wherever that acid attack is done, that particular area gets distorted। ओके, इतना ज्यादा हार्मफुल है। इसीलिए आजकल जो ये जो है ना एसिड और तेजाब का नॉर्मल बिक्री जो होता है ना, आप पहले जैसे आसानी से मिल जाता था, अब ऐसा नहीं है। इफ यू आर सेलिंग इट यू रिक्वायर लाइसेंस। Okay, if you are selling it, you require a license, then only you can sell this particular acid। Not simply anybody can go and show that हाँ मेरे को ये acid चाहिए, और ऐसा कोई भी ऐसे जाके खरीद नहीं सकता कि मेरे को ये acid का बिक्री करना है। Okay, simply anybody can't do that। Okay, is it clear? You should have that license or something so that you are eligible to sell that। Okay,
क्लियर? अब मैंने एक वर्ड यूज किया यहाँ पे, क्या हुआ? कंसंट्रेटेड एसिड और डाइल्यूट एसिड। कोई मुझे बता सकता है कि व्हाट इज कंसंट्रेटेड एसिड एंड व्हाट इज डाइल्यूट एसिड? हर्षित, कैन यू टेल? Ma'am, concentrate. Ma'am, may I tell? First tell me what's your name? Ma'am, Parshu. Pash, I get answer from you every time. You good beta, but I want to catch others also. Okay? If any two people Okay, are ma'am. not asking, I will give you the chance. ठीक है? Clear है? Harshit? हाँ, Pash, Yes, ma'am. one second. Pash, one more thing. You have sent me an image of NCERT. Pash, are you there? or Yes, not? ma'am. You have sent me an image of NCERT where there is a written that there is a maximum limit of a current to flow through the circuit. सर्किट बोला है, आपको कंफ्यूजन क्यों हुआ कि आप सर्किट और फ्यूज को वो कर रहे हो, मिक्सअप कर रहे हो? क्वेश्चन में पूछा गया था कि फ्यूज के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, तो फ्यूज में मिनिमम करंट लिया जाता है। ओके, मिनिमम करंट कितना वो सह सकता है, क्योंकि और सर्किट में आप मैक्सिमम, आप जो एनसीईआरटी का पिक मुझे भेजे हो उस एनसीईआरटी को थोड़ा देखना। आई फॉरगॉट टू गिव द रिप्लाई बट इट इमीडिएटली क्लिक नाउ इन माय माइंड दैट वो जो आपने जो मुझे फोटो क्लिक करके भेजा उसमें चेक करना बेटा, देयर इज रिटन दैट देयर इज अ मैक्सिमम लिमिट ऑफ अ करंट फ्लोइंग थ्रू अ सर्किट। सर्किट और फ्यूज दो अलग चीज है, ठीक है? फ्यूज का काम ही क्या है? ज्यादा करंट होगा तो मेल्ट हो जाएगा। तो हम ये देखते हैं कि फ्यूज कितना कम इलेक्ट्रिसिटी बेयर कर सकता है, कितनी कम इलेक्ट्रिसिटी का ओवरलोड ले सकता है। हम ये थोड़ी चेक करेंगे कितने ज्यादा का इलेक्ट्रिसिटी लोड कर सकता है, हम देखते हैं कि कितनी कम इलेक्ट्रिसिटी बेयर कर सकता है, ठीक है? उसका पावर कितना है। समझ में आया? आपने जो भेजा है मुझे पिक, उसको ध्यान से देखना। इट इज टेलिंग दैट देयर इज अ मैक्सिमम लिमिट ऑफ अ करंट फ्लोइंग थ्रू अ सर्किट, बट क्वेश्चन वाज देयर what is the statement which is incorrect for a fuse? It was not for circuit, it was for fuse. In that condition, the statement which is saying that there is a maximum limit of a current flowing through a fuse is wrong. Okay? क्लियर? क्योंकि जब फ्यूज बनाया जाता है तो ये देखा जाता है कितनी कम से कम इलेक्ट्रिसिटी वो बेयर कर सकता है, ठीक है? तभी तो हम उसका लिमिट सेट कर पाएंगे, इसकी इतनी कम लिमिट है तो यहाँ इससे ज्यादा की इलेक्ट्रिसिटी होगा तो वो उड़ जाए। समझ में आया? क्लियर है? Yes, ma'am. Okay. Now coming back, Harshit. Harshit, I told you what do you understand? Yes, ma'am. What do you understand by concentrated and dilute? मैम कंसंट्रेटेड एसिड एकदम स्ट्रॉन्ग होता है और डाइल्यूट एसिड मैम थोड़ा वीक। कैसे? क्यों वीक? Why? मैम उसकी पीएच कम होती है। Why? That is only my question. Why? Why so? मैम ऐसे नहीं पता। क्योंकि जब भी आप किसी एसिड या बेस को कंसंट्रेटेड बोलते हो तो इसका मतलब ये है कि उसके अंदर एसिड का परसेंटेज ज्यादा। इफ आई एम सेइंग दैट ए कंसंट्रेटेड एसिड सोल्यूशन, ओके, कंसंट्रेटेड एसिड सोल्यूशन बोल रही हूँ, तो इसका मतलब उसमें जो वाटर कंटेंट है वो कम हो गया और एसिड कंटेंट क्या हो गया? ज्यादा हो गया। एसिड ज्यादा है। ओके, और अगर मैं बोल रही हूँ इट इज अ डाइल्यूटेड एसिड, मतलब उसमें एसिड कम हो गया और वाटर ज्यादा है, ठीक है? तब वो क्या कहलाएगा? डाइल्यूट। तो आपने क्या बोला? बिल्कुल सही बोला आपने कि कंसंट्रेटेड का पीएच कम होता है। कंसंट्रेटेड का पीएच कम इसलिए होता है क्योंकि उसमें एसिड ज्यादा है। अब एसिड ज्यादा होगा तो जाहिर सी बात है तो पीएच तो कम होना ही होना है। और दूसरे वाले में क्या हुआ? डाइल्यूट हो गया। डाइल्यूट हो गया मतलब उसका क्या हो गया? उसमें वाटर कंटेंट ज्यादा हो गया, एसिड कंटेंट कम हो गया। एसिड कम हो रहा है तो जाहिर सी बात है पीएच तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। That's why dilute acids are having pH more than the concentrated acid of a respective solution. Okay, clear है? तो ये हुआ एसिड के बारे में, इसमें कंसंट्रेटेड क्या है, डाइल्यूट क्या है। अब इससे पहले आप मैं नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करूं, आप देखो मुझे कुछ एसिड्स के फॉर्मूलेस बताएंगे जो आपको पता है। ओके, यू कैन सेंड मी द आंसर इन द चैट सेक्शन। Write the formula of acetic acid. Acetic acid. Quickly, I am checking this chat section. Tell me the answer. Acetic acid. Tell me the formula of acetic acid. Acetic acid. Good. Pash, well done. Only Pash has given me the answer. What about others?
What about others? Vedant, Yashita, what about you people? Kalash, What, Rishi, ma'am? formula of acetic acid. Yes, Mole, good. Divya, good. से जाओ आया तो था Only 107. 3 people. The correct answer of formula of acetic acid is CH3COOH. Okay, CH3COOH. Correct है, good. Okay, Yashita, Yashita, why is it CC3? Why is it CC3? The correct answer is CH3COOH. Okay, so that is the correct answer. Jia also good. Now next, Kalash, CH3COO4 नहीं होता, H होता है. Okay, now write the formula of nitric acid. Nitric acid. Formula of nitric acid. Formula of nitric acid. Kalash good, Pash, Yashita good. Whenever you are writing the formula, be careful of the symbol. जब आप symbol लिखते हो तो symbol में आपको किसका मार्क मिलेगा? आपको उस पर्टिकुलर एलिमेंट को सिंबलाइज करने का मार्क मिलेगा. तो जब केमिस्ट्री में लिखते तो अल्फाबेट कैपिटल और स्मॉल का बहुत ज्यादा मीनिंग होता है. ओके, सो इट इज HNO3. यस, करेक्ट. HNO3 करेक्ट है आपको बेटा. ओके, सो इट इज नाइट्रिक एसिड. हनी शहद ओके, वो पीहू ने धक्का दी मेरे को तो टल लग के गिर गई. ओके. ऐसे साइड ही में पड़ी थी, उसने धक्का दी तो मेरा फिर टकराई तो गिर There गई. is so much noise is coming. नाइट्रिक एसिड जो है वो आपका सबस्क्रिप्ट में आएगा. ओके, क्लियर है? सो दिस इज द व्हाट नाइट्रिक एसिड फॉर्मूला. नेक्स्ट राइट द फॉर्मूला ऑफ कार्बोनिक एसिड. कार्बोनिक एसिड. कार्बोनिक एसिड. Carbonic acid. Next write the formula of carbonic acid. Parsh, well done, good. Jia, Divya, good. Tithi, yes. Kalash, no, it is not that. No. Yes, correct, Jinisha. Vineet also correct. Good. The answer is H2CO3. ये जो है सबस्क्रिप्ट पे चला जाएगा. सबस्क्रिप्ट मतलब ये बेस में आएगा. This one, okay, it will come in the base. So this will come in the base. Clear है? मौलिक, आपका आंसर क्यों नहीं दिख रहा बेटा? Sasha, no. Yes, Maulik also. Maulik, good. Your answer I got to see also. Okay, good. Okay, Sasha. No, not CO2. CO2 तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है बेटा. It is not like that. CO2 नहीं होता. H2CO3 is the answer. Okay, clear? Next is hydrochloric acid. Next is hydrochloric acid. Hydrochloric acid. Write the formula of hydrochloric acid. Hydrochloric acid. Good, well done. Good. Parsh, Kalash, Jinisha, Jia, Yashita, Vineet is still what it is that it is not HCI. Rishabh, good. Maulik, not HCI beta. It is HCl. Okay. This HCl. अरे शांत बैठना. Okay. It is HCl. Correct. Good. Last take one more acid. That is your sulfuric acid. जिसको मैंने अभी डिस्कस किया. Sulfuric acid.
Sulfuric acid. Yes, good. Jia, good. Tithi, also good. Yashita, good. Rishabh, good. Divya, also. Divya or Divya? Divya, yeah. Divya, good. Maulik, correct, good. Jidisha, correct. Okay. Good, beta. This way you should answer. Whether it is right or wrong doesn't matter. To attempt an answer, honestly, that doesn't matters. Okay? गलत है सही है वो मैटर नहीं करता, पहले आपको अटेम्प्ट करना मैटर है. ओके? Okay. So this is the formula of, yes बेटा पास कराऊं. सल्फर डाइऑक्साइड मतलब SO2 एक गैस होता है, SO2. ओके? सल्फर, सल्फ्यूरिक एसिड. ओके? अब एक और एसिड कर लेते हैं, उसके बाद देन आई विल, हाँ, ऑक्सैलिक एसिड. Oxalic acid, oxalic acid, oxalic acid, oxalic acid. Yes, good. Yes, good. Pash has given me the answer. Very good, Pash. Okay. Okay, so this is the formula of oxalic acid. Yes, correct. Tithi, Kalash, Divya, Maulik, Vineet, Jia, correct. Okay, Vineet, I said correct it is. Okay, good beta. अब एक और एसिड, then I will stop this. Sulfurous acid, sulfurous acid, sulfurous. Sulfurous acid, not sulfuric acid. Sulfurous acid. Yes. Not C. Yes, yes, Pasha, correct. Kalash also good. Yashita, good, good. Yashita gave you the answer first. Okay. Maulik, good. Not H2SOC. We need not H2SOC, it is H2SO3. Divya, Vanshika, good. Good, beta. So the answer is H2SO3. Correct. So these are the acid. अब मैं ये acid आपको क्यों लिखा रही हूँ? Because अब आपको आपका perfectly हो गया, आपका PT2 हो गया. Now you will be having little bit more level of the question, higher level of the question. Okay? So इस तरीके का question अगर मैं आपको दूँ, then you should be able to write. तो मैंने आपको एसिड का स्मॉल इंट्रोडक्शन के अलावा क्या बताया आपको? बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, एसिड के फॉर्मूलास मैंने आपको बताया. On which acid is called as the king of acid? कौन सा acid is called as king of acid? Which acid is called as the king of acid? Which acid is called as the king of acid? Which acid is called as the king of acid? You can send me the chat through the chat. And Tejab in Hindi. Yes? सल्फ्यूरिक एसिड. Yes, correct. Good. Sulfuric acid. Okay, no. Parsh, no. Sulfuric acid is known as the king of acid. मैंने आपको भी बताया था ना, तेजाब है वो. Okay, so that's right. Yes, Okay? ma'am. तो ये टॉपिक में से आपको इस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं. ठीक है? अब बारी आती है नेक्स्ट टॉपिक की. So let's see what are the base. अब बेस की बात है. अब सपोज यू आर वॉशिंग योर फेस एंड योर हैंड, but that soap bubbles slowly goes into your mouth. What you will feel? You will feel bitter in taste. Okay, you will feel bitter in taste. Okay, why that it is bitter in taste? Because it is having base in it. Okay, why it is bitter in taste? Because it is having base in it, and that's why bases are bitter in taste. और जो कॉमन डेली लाइफ में सबसे जो हमारे पास बेस के साथ आता है वो है ब्लीच,
अमोनिया, वॉशिंग पाउडर, सोप, ये सारे के सारे क्या है, बेसिकली इनके अंदर क्या रहता है, बेसेस। इवन टूथपेस्ट जो हम यूज करते हैं, ब्रश करते हैं मॉर्निंग एंड नाइट, वो भी क्या है, बेस ही है। इट इज बेसिक इन मैम जो भी चीज सोपी होती है और कड़वी होती है मैम, लेकिन पेस्ट तो कड़वा नहीं होता। क्या वो स्लिपरी टेक्सचर होता है ना, क्या बोलते मैम हैं, सोपी हो या तो बेटर। सोप टेक्सचर होता है। सोप यानी स्लिपरी इन टच रहता है। सोप का मतलब स्लिपरी टाइप का। आप अगर थोड़ा सा पेस्ट लगा के देखोगे, वो ड्राई होने से पहले अगर हाथ में से लगाओ, थोड़ा सा स्लिप करेगा कि नहीं करेगा, करता है कि नहीं करता है? यस मैम, यस। कि नहीं? सोप बोलने का मतलब ये है कि नहाना नहीं, इट इज टेलिंग दैट इट इज स्लिपरी, लिटिल बिट स्लिपरी लाइक अ सोप। तो आप अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड का टेक्सचर टच करोगे, टच नहीं करना चाहिए वैसे कॉस्टिक सोडा, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग बेस है, तो वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होता है, तो वो आपका जो ये स्किन है ना, वो भी उसको खराब, इतना कोरोसिव नहीं होता जितना सल्फ्यूरिक एसिड है। सल्फ्यूरिक एसिड जितना कोरोसिव नहीं होता, लेकिन फिर भी इतना सफिशिएंट रहता है कि इट कैन हार्म योर स्किन। ओके, it can harm your skin, not very much dangerous like your sulfuric acid, that if you are put by mistake, if you are putting a 1 drop, that particular area will get burned, itna dangerous nahi hota. Okay, clear? Yes, yes, good Pash. ओके, सो यहाँ पे क्या है, वॉशिंग पाउडर, सोप वगैरह में क्या है, बेसिस रहता है। और ये जो बेसिस जो रहते हैं, वो अगर पानी में सॉल्युबल होंगे तो हम उनको क्या बोलते हैं, अल्कली। द सॉल्युबल बेसिस आर कॉल्ड एज द वाटर सॉल्युबल, नॉट एवरीथिंग, वाटर सॉल्युबल बेसिस को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्कली बोलते हैं। ओके, क्लियर? तो वाटर सॉल्युबल बेसिस आर कॉल्ड एज अल्कली। अब जैसे है हम अब इसी से रिलेटेड, जैसे मैंने आपको कुछ फॉर्मूलाज उसमें कराए हैं, अब इस पे देख लेते हैं कुछ फॉर्मूलाज। ओके, यस, व्हाट इज द टाइमिंग, इज द टाइम ओवर? नो ना? नो मैम, 5 minutes left. It's all that I thought it is time is over. Oh, ma'am. Still 5 minutes left. Okay. So what it is there? अब ये आपका क्या होगा, हाँ, अब यहाँ पे क्या हुआ आपका, मैंने क्या बोला, सोप जो रहता है, जितने सोप में क्या रहता है, बेस रहता है, एंड दैट्स व्हाई दे आर बिटर इन टेस्ट एंड बेसिकली स्लिपरी इन टच। ओके, तो एंड जितने भी वाटर सॉल्युबल बेसेस है उनको हम क्या बोलते हैं, अल्कली बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अल्कली। ओके, और जिसके अंदर ये अल्कली मिले उसको हम बोलते हैं अल्कलाइन सब्सटेंस। जिसके अंदर भी ये अल्कली मिले हम उनको बोलते हैं अल्कलाइन सब्सटेंस। ओके, अब ये अल्कली हो गया। अब इससे रिलेटेड एक एक्स्ट्रा चीज जो आपको, एक्स्ट्रा नहीं, इट इज गुड फॉर यू टू नो दैट, आपको पीरियोडिक टेबल पता है? डू यू नो व्हाट इज पीरियोडिक टेबल? Yes ma'am. ma'am. Periodic table. Yes, ma'am. Periodic table Yes, ma'am. in which the elements are arranged in the increasing order of atomic number. उस टेबल का शेप कुछ इस तरीके से, ओके, इस तरीके से उसका शेप रहता है। ओके, क्लियर? तो इस तरीके से उस टेबल का शेप रहता है, तो इसको बोला जाता है पीरियोडिक टेबल। और इसके अंदर क्या रहते हैं, एलिमेंट्स अरेंज रहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर। उसमें एलिमेंट्स कैसे अरेंज रहेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर। मैम ये क्या होता है एटॉमिक नंबर? ठीक है, एटॉमिक नंबर क्या होता है कि किसी, अब आपको पता है एटम के अंदर क्या रहता है बेटा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, है कि नहीं? किसी भी एटम के अंदर क्या चीज रहता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, यस मैम। न्यूट्रॉन। तो उसके अंदर कितना प्रोटॉन है वो उसका एटॉमिक नंबर कहलाता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। क्या चीज, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। किसी भी एटम के अंदर 3 टाइप के सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, यस बेटा 1 मिनट फास्ट, आई विल डील विद दैट, वेट 1 सेकंड। हाँ, इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नेगेटिवली चार्ज होगा, प्रोटॉन जो होगा वो पॉजिटिवली चार्ज होगा, न्यूट्रॉन जो होगा वो क्या होता है, न्यूट्रल रहता है, ना वो पॉजिटिव ना वो नेगेटिव रहता है, वो क्या रहता है, न्यूट्रल रहता है। ओके, क्लियर? सो आपका अगर किसी एलिमेंट, किसी भी एटम के अंदर कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है वो उस पर्टिकुलर एटम का क्या हो जाएगा, एटॉमिक
नंबर। जैसे कि अगर मैं सोडियम की बात करूं तो इसके अंदर होते हैं 11 प्रोटॉन्स, तो इसका एटॉमिक नंबर क्या हो जाता है 11। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट ऑक्सीजन, इट इज हैविंग 8 प्रोटॉन्स, दैट्स व्हाई इट्स एटॉमिक नंबर इज 8। हाइड्रोजन के अंदर एक प्रोटॉन होता है, इसलिए इसका एटॉमिक नंबर भी क्या है 1 है। मैम ये कैसे पता चलता है कि ये मतलब ये क्या डिस्कवर हो चुका है कि किसके अंदर कितना प्रोटॉन है, और उसको एटॉमिक नंबर बोला गया, और उसी एटॉमिक नंबर के बेसिस पे आपका जो है वो एलिमेंट जो है वो अरेंज्ड है पीरियोडिक टेबल में। हमने पीरियोडिक टेबल या मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स हम केमिस्ट्री लेके पढ़ते, तो हमारा काम तो रोज इसी का है, तो मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स हमको याद हो चुका है। तो आप जैसे अभी क्या बोलते हैं, व्हेन यू विल गो टू द 8th क्लास ऑनवर्ड्स, you will have this particular periodic table. So आपको एक छोटा सा काम दे रही हूँ मैं, आपको क्या करना है, आपको 1 से लेके 20 तक एलिमेंट्स आपको पढ़ने हैं। अब what you have to do, you have to do, मैम ये एग्जाम में आएगा क्या? नहीं ये आपको मैं अभी पढ़ने बोल रही हूँ क्योंकि आपको बहुत काम की चीज है, ये आपको मैं एक्स्ट्रा नहीं बोल सकते, इट इज गुड फॉर योर नॉलेज when you if you are going to 9th class must to do। अब प्रॉब्लम ये होती है 9th क्लास में उन पढ़ना चालू करते हैं, पढ़ना चालू करते हैं, अब when you are starting in that particular age only, how you are going to remember last moment एग्जाम से पहले। तो एक बार अगर आपने अभी पढ़ लिया तो आपको 9th में आपको ये चीज कैसे नहीं लगेगी, नहीं लगेगी, हाँ ये तो मैं पढ़ चुका, लाइक ABCD, लाइक ABCD भूल गए हो क्या KG1 में KG2 में पढ़े? Have you forgotten? No, ma'am. No. Why? Because you have by hearted that. So if you are remembering this 1 to 20 elements now, and if I am going to revise it, तो आपको क्या होगा, आपको लास्ट तक याद रहेगा ये 1 to 20 elements, and आपको 9th से लेके and by if you are taking 11th 12th also, then it is no problem, if I will come for you, it will be good for you. Okay? So आपको एक छोटा सा काम है, तो आपको क्या करना है 1 से लेके 20 तक एलिमेंट्स को पढ़ना है। क्या करना है 1 से लेके 20 तक के एलिमेंट्स को पढ़ना है। क्लियर है बेटा? मैम यस कर सकते हो। आखिरी एटॉमिक एलिमेंट कौन सा है? सबसे आखिरी? सबसे आखिरी में अभी तो 118 एलिमेंट्स डिस्कवर हुए हैं बेटा, उसमें से इसका है उन ऑक्टियम, इसका नाम है उन ऑक्टियम। ओके क्लियर? ओके मैम। ओके अब आप पार्ट्स के डाउट पे आते हैं। अल्कली का फॉर्मूला LiOH नहीं होता बेटा, वो लिथियम हाइड्रोक्साइड है, इसलिए उसका फॉर्मूला है। यस बहुत सारे अल्कलीस होते हैं, जैसे हाँ अभी आपको नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे को यही कराना है कि व्हाट आर द फॉर्मूलाज ऑफ द डिफरेंट बेसेस। ओके तो अब मैं आपको एक एक बेस का नाम बता रही हूँ, अगर आपको उसका फॉर्मूला पता है सेंड मी द नेम थ्रू द चैट। ओके द इम्पोर्टेंट बेसेस मीन्स जो आर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड। ओके सबसे पहला कॉमन बेस जो है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सेंड मी थ्रू द चैट पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, potassium hydroxide। Okay, don't worry, Pass, good। Okay, so I am stopping the class here, it is 9:40। Okay, in the next Bye, ma'am. bye। I'm ending my class, all of you। Okay, good day all of you। Good day, ma'am. Good day। बाय मैम। Bye।